All right. Hi, guys. Today we have with us Madhur Bhaiya. So, Madhur Bhaiya is going to be like Jeetu Bhaiya for the next few months with us for the preparation. So, Madhur, today the first session I want to introduce you to. आज मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप कम बोलेंगे. But I'll ask you question, you to answer those question. आगे जाके you have an independent right to talk to students and guide them towards. So, Madhur have got 95 percentile in CAT exam. And then CET में 99.57, I guess. 57, right? 5.8. 5.8, yeah, perfect. So we want to understand your journey, how to mend from CAT to the non-CAT exam, because there are two school of thought. There are two ways to look at. Number one, focus on CAT. एक बार CAT खत्म हो तो CAT के बाद we look at the non-CAT exam. या सेकेंड ऑप्शन इज कैट तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारा दिल अंदर से बोल रहा है कि कैट तो नहीं होने वाला, या कैट में हो भी गया तो अपना जेबी अपना मेन टारगेट है, तो वी कैन टारगेट अदर एग्जाम्स एज वेल. So there are two ways to look at the things. So Madhur, first start with your story, where you're from, which college you're from, and how the things are going. I'm from Pune. I started studying from last June 2020. It was lockdown and I needed to study. So I started preparing for CAT, and actually I did enhanced study thoroughly, like giving mocks from first week and maintaining a sheet, Excel sheet with all the timings and all the scores. So after CAT, I scored a 95.21 percentile in CAT, and after CAT, I got to know that actually my whole syllabus is covered. I just need to prepare a strategy for non-CAT exams. Like everything, logic and everything you study during CAT itself, just you have to cover up. You have to shine the gold after that. So after that, I started studying for SNAP, in which I got 98.7 percentile. And then after CET, you know what happened with CET. I was supposed to give in March and I'm giving it in September. So, but the thing is that the focus and the study for CAT really helped me in other exams. Right. So you in the school of thought ki pehle CAT pe focus karo, and after CAT you have enough time to focus on non-CAT exam. Yes. Superb. That is one way to look at things. And by the way, guys, we have two interviews today. One sir is talking about how to not give up and keep your hope alive and go for the exam next year. Yeah. On the second hand, we have another ma'am coming and talking to you people. वो उनका उल्टा था कि मैं दोबारा नहीं कर सकती, जो कॉलेज मिला लेके अच्छा करो कॉलेज में जाके. सो दैट टू आपको जिसको फॉलो करना फॉलो कर सकते हो. सो मधुर, गोइंग फॉरवर्ड नाउ, योर मेन फोकस इज नॉन कैट एग्जाम. जो बच्चे कैट दे रहे हैं उनके लिए हमारा ऑलरेडी टीम सेट है. आप नॉन कैट एग्जाम को टेक ओवर कर लो. यार पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, 3-4 लोगों ने बोला विच कॉलेज यू फ्रॉम. सो आर यू फ्रॉम MIT? No, आई एम फ्रॉम सिंहगढ़. सिंहगढ़ कॉलेज. हाँ, तो भाई 3 लोगों ने बोला MIT. इज ही फ्रॉम MIT? तो नहीं भाई, सिंहगढ़ से हैं भैया हमारे. तो ठीक है. तो Madhur, if I talk about the non-CAT exam, there are 4-5 things which are new. Number one is obviously the logic section, because logic is totally new. If I talk about the CAT exam, CAT का logic अलग level, CET, SNAP, NMET का logic का is a different ball game altogether. So that's one thing you have to change immediately. Second thing is the DI, क्योंकि DI is pure calculation based. In every exam apart from CAT, तुम IFT ले लो, आप कोई भी exam ले लो, ठीक है. सीईटी में अपना वो कैट में कैलकुलेशन बेस्ड DI एक आएगा, वो भी आया, तो वो भी कैलकुलेशन के नाम पे कुछ होता ही नहीं है कैट में. फाइन. And then grammar, vocab, we have to focus on all these things. Today, I want to start with the logic section, that what all you did in the logic section. Now, after CAT, we have got almost 3 weeks का time for the SIMBI exam and another 2 months for the CET exam, assuming CET is in March. तो आपने सीट, हाँ वो अभी भैया अभी हर बार मैं बोलने वाला हूँ स्टार के साथ, जहां पे वर्ड CET आएगा साथ में एक स्टार आएगा. तो पब्लिक बात है मेरे ऊपर, तुमने तो कहा मार्च में होगा एग्जाम. मैंने तो बहुत कुछ बोला था, एग्जाम ही लेट हो गया, हम क्या कर सकते हैं. तो आपने लॉजिक के लिए अलग से क्या किया? एक्चुअली लॉजिक जब स्टार्ट किया मैंने, सीईटी, एक्चुअली मैं सीईटी का बोलता हूँ, सीईटी में लॉजिक ज्यादा बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में. लाइक एक जो टॉपिक है इजी है, लॉजिक ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे. ब्लड रिलेशंस, कोडिंग. मैंने ना ये खोल दिया यहाँ पे, मैंने ये टॉपिक खोल दिया यहाँ पे. सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ अवर ब्लैक बुक एंड द प्रो लेवल बुक्स. दोनों में अपन लॉजिक की बात कर लेते हैं एक बार. तो अगर हम पहले ब्लैक बुक की बात करते हैं, सो
एनालॉजी, सीरीज, अल्फाबेटिकल रैंकिंग, ये सब इस बार सीईटी में आया था. हाँ, एवरी सब टॉपिक है। हैव कम इन द सीईटी एग्जाम. द वे यू सेड, सब छोटे छोटे, एक दिन का काम है यार, एक दिन का भी काम नहीं है, राइट? 1 घंटे का काम है. इनमें से सिर्फ आपको टॉपिक चूज करने हैं जो आपको आते हैं, वो उसके 2-2 घंटे भी आपने कर लिया तो इनफ है. मतलब यू कैन स्कोर 4 out of 5. राइट, राइट, आराम से हो सकता है. इनमें से भारी टॉपिक की एक बार बात कर लेते हैं. आई थिंक ब्लड रिलेशनशिप विल बी मीडियम लेवल, नॉट अ इजी लेवल. उसमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना जाएगा. डायरेक्शन सेंस इज अ मीडियम लेवल, रैंकिंग इज अ मीडियम लेवल, इधर से इनपुट आउटपुट इज अ मीडियम लेवल, एंड सिलोगिज्म. यस, ठीक है. एंड अच्छा, बाय द वे, सिलोगिज्म जो सीईटी में आता है वो अलग है. इस बार जो सीईटी में जो न्यू पैटर्न है जो आया था वो अलग था, दैट वाज लाइक मिक्स विद क्रिटिकल रीजनिंग. मिक्स विद क्रिटिकल रीजनिंग. एग्जैक्टली, वो भी हमने इसमें डाल दिया है. तो वो भी अभी जो न्यू बुक्स आ रही है उसके अंदर सिलोगिज्म न्यू टाइप डाल दिया है. ठीक है. तो गाइस आगे जा क्या होगा कि जीतू भैया आपको, जीतू नहीं सॉरी, मधुर भैया आपको एक दिन दे देंगे कि भाई ये न्यू चैप्टर खत्म करके आओ. ठीक है. तो आप 5 क्वेश्चन पहले करवा दिए. वी एज अ स्टूडेंट ना, हम लोग बंदूकें लेके तैयार खड़े हैं, बस कोई बोल दे अटैक क्या करना है, खुद से मैं नहीं करने वाला. दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट विद द इंडियन स्टूडेंट्स, कि हमें कोई बोल देना अपन हार के आएंगे. ठीक है, खुद से मैं नहीं करने वाला. ठीक है, खुद से मैं आराम से बैठा रहूंगा. दैट्स टिपिकली ट्रू. जब तक मम्मी की गाली नहीं पड़ती तब तक अपन पढ़ने नहीं बैठते. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, मेरा ऐसा था. जब तक वो सुबह सुबह जब तक गाली नहीं पड़ेगी ना, कि जब तू तक पढ़ता ही नहीं है, तब तक पढ़ना नहीं है. जब तक फ्लाइंग चप्पल रिसीव नहीं होते तब तक कुछ नहीं होता. ट्रू 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 ट्रू, वो आदत हो चुकी है अभी हमें. हाँ, प्रो बुक्स कब तक आएगा? प्रो बुक्स विल बी अवेलेबल विद यू बाय नवंबर फर्स्ट वीक. तब तक आप अपनी ब्लैक बुक खत्म करो. गाइस मैं आपको सिंपल टारगेट दे रहा हूं, और सर जी आपको भी यही मेंटेन करना है कि इनको 100 मार्क्स टच करा दो बाय December 30. 100 टच करो, तब तक तुम्हारा एनमेट भी हो गया, स्नैप हो गया, जो तुम्हें फालतू एग्जाम देने हैं. मेरे लिए फालतू एग्जाम, मेरे लिए पापा सीईटी मेन है कैट के बाद. अपने को 2 मेन एग्जाम दिखते हैं. If until December you want to touch 100, आपको अभी से पर वीक एक मॉक तो देना ही होगा. Even if you score 40, even if you score 50, but per week you will need one mock. In your login ID total there will be around 70 to 80 mocks. ठीक है, टोटल 70 to 80 मॉक्स टच हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम जाएगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, इंक्लूडिंग ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, एवरीथिंग. ओके. तो हाउ टू स्टडी डेली, मयूर आप सिंपल वीकली टारगेट फॉलो करो. दोज आर गिविंग द कैट एग्जाम, अब चाहिए तो आप रोज मॉक, हफ्ते में एक मॉक ना दो, आप 15 डेज में भी एक मॉक दे दो. बट आगे जाके आपको हफ्ते में एक मॉक. दोज आर नॉट गोइंग फॉर द कैट एग्जाम, एवरी वीक यू हैव टू गिव 1 मॉक. सिंपल. अभी के लिए सर ब्लैक बुक्स आर मोर देन इनफ. मतलब until November, until December, until you have focus on CAT and CET also, black books are more than enough. जो वीकली टारगेट सेट किया है उसके हिसाब से अगर करते जाओगे आपके मॉक्स में स्कोर आने ही आने हैं. CETking.com/CET2022. I've given the timetable, weekly timetable for that. Guys, मेरी बात मानो, टेंशन लो ही मत. एग्जाम कब होगा पता नहीं, तुम बस ये हफ्ता संभालो. हफ्ते के हफ्ते आप टाइम टेबल फॉलो करते जाओ. एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव टिल द एग्जाम डेट, एग्जाम जब भी हो. ठीक है. लाइक आप भी हमारे साथ लास्ट ईयर में ऐसे ही था भाई, तुम वीकली टारगेट फोकस करो, एग्जाम कब होगा देखा जाएगा. ठीक है. तो ब्लैक बुक कब मिलेगा? ब्लैक बुक नहीं मिला. स्वरंगी जिसने कैट के लिए ज्वाइन किया था, दे विल डायरेक्टली गेट द एडवांस लेवल बुक्स आफ्टर कैट एग्जाम. ओके, दोज हु ज्वाइन फॉर द नॉन कैट एग्जाम विल गेट द ब्लैक बुक्स विद इन 1 वीक. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, सॉरी तो यूट्यूब पे बोलता हूँ मैं, तो वहां जाके आपको मिल जाएगा. ठीक है. आपने लॉजिक के लिए कितना टाइम लगाया होगा अलग से आफ्टर कैट एग्जाम? आफ्टर कैट एग्जाम लॉजिक के लिए if I count every day, I spend around 2 hours. 2 hours on logic. That's more than enough. सुपर सुपर, चलेगा. तो अभी कैट की बात करते हैं. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द कैट एग्जाम. Harushi after that will move to the SIMBI and other exams. After that we'll go for the CET exam. So let's break into 3 parts. So मधुर, अपने कैट के लिए क्या किया? मतलब how was your preparation going on for the CAT exam? Actually सर कैट के लिए जो प्रिपरेशन था that was a bit different. कैट में मुझे दिमाग का यूज करना पड़ता था, बहुत रन अप होता था. सो वो एंडिंग में जो दिन भर अगर स्टडी किया है तो एंडिंग में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो भी जाता था. लेकिन एक्चुअली कैट के लिए when you solve a set, when you solve a question, you get a satisfaction and that satisfaction counts. So उसके लिए लॉजिक के DILR के लिए मैंने ज्यादा फोकस किया था.
और उसमें हर टाइप के डिफरेंट टाइप्स के सेट 10 12 सेट करो, हो जाएगा। सुपर सुपर। एंड अगर आपका 95 परसेंटाइल पार हो गया, आपको आयन की कॉल तो न्यू आयन तो कॉल आ ही जाएगा आराम से। सो व्हाट वाज योर डेली टाइम टेबल फॉर द लास्ट 1 मंथ? लाइक सपोज आज मैं अगर शुरू करता हूं तो उसको ना मैं एक सेकेंड पार्ट में कर देता हूं, इसको एक पार्ट खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है? सो गाइस, आर यू फाइन विद दैट? पहले कैट खत्म करो, देन फोकस नॉन कैट एग्जाम। सेकंड वे व्हिच आई वांट टू रिकमेंड इज, सी यू कांट स्टडी फॉर कैट एवरी डे, देयर आर सम फेजेस व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी एट ऑल। आज किताब खोलने को मन नहीं कर रहा, इन दैट केस लॉजिक पढ़ लो। ये सिलोगिज्म इम्प्रोग इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना कि तुम्हारा वो कैट के जितने भी दुख दर्द है सब निकल जाएंगे। आई बिलीव इन दैट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नॉन कैट एग्जाम, दे विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस फॉर द कैट एग्जाम कि चल यार कैसे तैसे करके कैट निकालो, बाद में अपन सीटी है हमारे पास। सो दैट टू स्कूल ऑफ थॉट, आपको जैसे फॉलो करना आप कर सकते हो। यू कैन प्योरली फोकस ऑन कैट, देन आफ्टर कैट वी लुक एट द नॉन कैट एग्जाम। देन देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी इट माइट गेट लेट आल्सो। चलो भैया का ऑलरेडी 95% था, उसका काफी कुछ आता था, बट इफ यू आर एट 80 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल, देन इट माइट बी लिटिल लेट फॉर यू टू स्टार्ट फॉर द सिम्बी एग्जाम, राइट? वो हो सकता है क्योंकि आपका ऑलरेडी अच्छा था ना। इन दैट केस अभी से बस लॉजिक संभालो और कुछ मत करो, ओनली टेक द लॉजिक सेक्शन। लॉजिक इज अ गेम चेंजर। लॉजिक द गेम चेंजर, तो लॉजिक बचाओ, ठीक है? तो सर आगे जाके यू प्लीज टेक ओवर एंड गिव देम द डिटेल अबाउट कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है? ओके सर।